Okay, welcome to this math session, students. In previous math session, we learned that what is the relation between coefficients of linear equation in two variable and their solutions. Linear equations in two variables can have unique solution, no solution, or infinite solution. For unique solution, your relation between coefficients should be a1 by a2 is not equal to b1 by b2. For no solution, that relation is a1 by a2 equal to b1 by b2, but it is not equal to c1 by c2. And for infinitely many solutions, all these three ratios are same. For infinitely many solutions, your graph will be like this. Both the lines will be coincident. For no solution, both the lines will be parallel. And for unique solutions, both the lines will be intersecting. Here, whenever we are getting solution, those systems can be called consistent system of linear equation. And when we are getting no solution, that is called inconsistent system of linear equation. Is this clear, Janvi P? Now, based on this knowledge, let us start our questions of 3.2. 3.2 में सबसे पहले in class exercise level 1 question 1. Okay. How many solutions does the following system of linear equations have? चलो अब इसके solutions find करने के लिए पहले एक question मैं आपको दिखाता हूँ. हम C को पहले लेफ्ट हैंड साइड पे लेके जाएंगे. So this first equation will become 3x minus 5y minus 20 equal to 0. And the second equation will become 6x minus 10y minus 40 equal to 0. अब यहाँ पे हम सारे रेशियो फाइंड करेंगे a1 by a2, b1 by b2 और c1 by c2 के. तो sorry everyone. So here नहीं a1 by a2 आपके हैं कोएफिशिएंट ऑफ x ओनली. तो यहाँ x के कोएफिशिएंट है 3/6 which is equal to half. b1 by b2 y के कोएफिशिएंट -5 by -10 half. c1 and c2 आपके कांस्टेंट टर्म जो हो जाएंगे -20 by -40. इट इज ऑल्सो हाफ. चलो टाइप इन चैट बॉक्स क्विकली और अनम्यूट योरसेल्फ एंड टेल मी हियर a1 by a2 इक्वल टू b1 by b2 इक्वल टू c1 by c2. तो कितने सॉल्यूशन होंगे? Infinitely many. Yes. So therefore infinite solutions are possible. बोलो आसान है कि नहीं? हाँ या ना? ये पूरी एक्सरसाइज आपकी इतनी पूरी आसान है. आप हंसते हंसते खेलते खेलते कर सकते हो. Right. Let us see now question number 2. Determine the consistency of the following system of linear equations. यहाँ पे आपको कंसिस्टेंसी चेक करनी है. तो कंसिस्टेंसी के लिए भी सेम आपको पहले यही चेक करना पड़ेगा कि सॉल्यूशन मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है. ओके नहीं वास्तव ऐसा नहीं होगा. डोंट वरी अबाउट इट. राइट. इनफाइनाइट में हम ऐसे प्रिसाइजली नहीं बोल सकते. ओके वो इनफाइनाइट में इनफाइनाइट ही है. राइट. So first equation will be 3x minus 5y minus 20 equal to 0. Second equation will be 6x minus 10y plus 40 equal to 0. चलो अब यहाँ पे a1 by a2 क्या है? सेम. ओके हियर a1 by a2 is equal to 3/6 which is equal to half. b1 by b2 minus 5 by minus 10 which is also equal to half. c1 by c2 which is equal to minus 20 by 40 which is equal to minus half. तो यहाँ पे मैं क्या बोल सकता हूँ स्टूडेंट्स? यहाँ पे कैन आई से दैट a1 by a2 equal to b1 by b2 but c1 by c2 is not same. a1 by a2 is equal to b1 by b2 is not equal to c1 by c2. Right. So both the lines are parallel. Here both the lines are parallel. अगर दोनों लाइंस पैरेलल हैं तो आप क्या बोल सकते हो? क्या वो कंसिस्टेंट है कि इनकंसिस्टेंट? Inconsistent. Yes. So therefore given system of linear equations are inconsistent. Okay, यहाँ तक क्लियर है? Now wait, few students are asking something. one student is asking sir how we will get to know which method to use. एक ही तो मेथड है a1 by a2 b1 by b2 c1 by c2. राइट. सेपरेटली बस a1 by a2 b1 by b2 और c1 by c2 फाइंड करो.
और फिर चेक करो कि उसमें दोनों सेम आ रहे हैं, दोनों अलग आ रहे हैं, तीनों सेम आ रहे हैं, कोई दो सेम आ रहे हैं, कौन से सेम नहीं आ रहे हैं। ठीक है, जब भी आपको ये पूछा जाए कंसिस्टेंसी है कि कंसिस्टेंट नहीं है, कितने सॉल्यूशन मिल रहे हैं, उसके लिए बस आपको ये तीनों रेशियो फाइंड करने हैं और कंपेयर करने हैं, A1/A2, B1/B2 और C1/C2। क्लियर ना? लेट अस सी नेक्स्ट क्वेश्चन। लिखने का मैं टाइम दूंगा, सो डोंट वरी अबाउट इट। अभी सिर्फ आप समझने पे फोकस करो, पहले आपके कंसेप्ट क्लियर होने चाहिए। Kratake is telling, sir, here in this question, can we say that a single polynomial has two different solutions? Kratake, can you elaborate? Single polynomial, ये polynomial नहीं है, this is equation. Polynomial मतलब equal to something नहीं होता है, right? So एक single polynomial को two different solution, infinite solution हो सकते हैं। जब आप 3x minus 5y minus 20 वाली लाइन प्लॉट करोगे और 6x minus 10y plus 40 वाली प्लॉट करोगे, इसके इनफाइनाइट सॉल्यूशन हो सकते हैं, इसके इनफाइनाइट सॉल्यूशन हो सकते हैं सेपरेटली, बट दोनों के कंबाइनली एक लाइन के ऊपर इनफाइनाइट पॉइंट मिलेंगे जो उसके इक्वेशन को सेटिस्फाई करेंगे, दूसरे लाइन के ऊपर इनफाइनाइट पॉइंट मिलेंगे जो उसके इक्वेशन को सेटिस्फाई करेंगे, बट एक भी पॉइंट ऐसा नहीं मिलेगा जो दोनों के इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा। यही पूछ रहा हो ना कृतज्ञ, और समथिंग एल्स? Sir, I was telling that we can take 2 common in the second one. Okay, 2 common in the second, so it will be 3x minus 5y plus 20 equal to 0. Then So, sir, 2. No, sir, I was telling that 3x minus 5y is equal to 20. wait, I was not able to hear clearly, can you repeat? Sir, here 3x minus 5y is equal to 20 and 3x minus 5y is also equal to minus 20. So they cannot have any single solution. हाँ, that is also fine, yes. और हर एक पैरेलल लाइन में ऐसा ही होगा, राइट? ऑल द पैरेलल लाइंस जो आपने किया ये सेम वैसा ही होगा, कोई एक चीज कॉमन निकलेगी और वो कॉमन कुछ नहीं, यहाँ पे जो आपका रेशियो होगा वही वाला कॉमन निकलेगा, राइट? सो ये वाला आपका यहाँ पे कॉमन निकलेगा, द लाइन विल गो टू दैट साइड। नहीं प्रहलाद, और कुछ चेक नहीं करना है हमें, राइट? कंसिस्टेंसी मतलब बस इतना ही देखना है वो आपके है या नहीं। ओके, ओके, क्वेश्चन नंबर 3 एवरीवन। मैं अभी लिख रहा था सब जो कृतज्ञ बोल रहा था, एंड स्क्रीन शेयरिंग वाज पॉज्ड, तो आई थिंक जो मैंने लिखा कुछ दिखाई नहीं दिया होगा। चलो क्वेश्चन नंबर 3 को समझो स्टूडेंट्स। Five books and 7 pens together cost rupees 79. 7 books and 5 pens together cost rupees 77. Find the total cost of 1 book and 2 pens by graphical method. ठीक है, समझते हैं। तो पहले 1 बुक और 1 पेन की कॉस्ट को मुझे कुछ एज्यूम करना पड़ेगा, राइट? व्हाट कैन आई एज्यूम हियर? लेट कॉस्ट ऑफ 1 बुक is equal to rupees X, cost of 1 pen is equal to rupee Y. एक बुक की कॉस्ट है X रुपीज और एक पेन की कॉस्ट है Y रुपीज। नाउ 5 books and 7 pens together cost rupees 79. So from condition 1 can I say that 5x plus 7y is equal to 79? 5x plus 7y आपके 79 हो जाएंगे, हाँ या ना एवरीवन? Yes, sir. Right, next 7 books and 5 pens together cost 77. 7 books 7x and 5 pen plus 5y, they together cost 77. 7x plus 5y equal to 77. क्या एक दूसरा इक्वेशन बन सकता है, हाँ या ना एवरीवन? Yes, sir. अब मुझे 1 बुक और 2 पेन की कॉस्ट फाइंड करनी है, मतलब 1 बुक मतलब 1x, 2 पेन मतलब 2y। ये मैं तभी फाइंड कर पाऊंगा, पहले मुझे x और y फाइंड करना पड़ेगा, और ये x और y मुझे कैसे फाइंड करने हैं? फ्रॉम ग्राफिकल मेथड। दैट मींस आई नीड टू ड्रॉ ग्राफ ऑफ बोथ द इक्वेशंस। चलो ट्राई करते हैं। सो 5x plus 7y equal to 79 का ग्राफ प्लॉट करने के लिए अगर मैं x की वैल्यू 0 रखता हूं यहाँ पे, तो y की वैल्यू मुझे 79/7 मिलेगी, हाँ या ना एवरीवन? 79/7 का अप्रोक्सीमेट आंसर क्या आएगा? 7 1 जा 7,
देन अगेन 7 1 जा 7, 2 बचेगा 20, 7 2 जा 14, 6 बचेगा, 7 8 जा 56, 11.28 फिर आगे चलता जाएगा। सो अप्रोक्सीमेटली मैं 11.28 लेके आगे बढ़ूंगा। यहाँ तक क्लियर है स्टूडेंट्स? प्लीज गिव मी सम रिस्पॉन्स। हाँ या ना? हाँ या ना? यस सर। चलो अब जब मैं y को 0 ले रहा हूँ तब आपका x क्या हो जाएगा? x विल बी योर 79/5 हियर। Now 5 1s are 5, then 29, 5 5s are 25, 4 बचेगा, 5 8s are 40, 15.8। ये तो आपको डायरेक्टली मिल जाएगा 15.8, राइट? चलो यहाँ के लिए जब मैं x 0 ले रहा हूँ तो y आपको मिलेगा 77/5, 5 1s are 5, 27, 5 5s are 25, 2 बचेगा, 5 4s are 20, 15.4 डायरेक्टली मिल जाएगा। और जब आप y 0 लोगे तो x मिल जाएगा 77/7, 11। ये वाला इक्वेशन अच्छा है, ज्यादा परेशान नहीं किया, राइट? चलो अब इसका ग्राफ प्लॉट कर देते हैं। ग्रेट जानवी पे, गुड न्यूज। x y ओरिजिन पहले लाइन के लिए आपको चाहिए 11.28, 0। सपोज दिस इज 11.28, 79/7। और इधर चाहिए 15.8, तो वो थोड़ा बड़ा होना चाहिए, तो इसको इधर कर देता हूँ मैं 79/7, 11 समवेयर हियर, तो 15 में यहाँ पे दिखा सकता हूँ, राइट? 15.8। This will be your first line. Now second line 15.4, 0, तो 15.4 आपका अप्रोक्सीमेट यहाँ पे आ जाएगा, एंड यहाँ पे हो जाएगा 0, 11, तो वो 11 यहाँ पे आ जाएगा। इट विल बी समथिंग लाइक दिस। फिर यहाँ पे आपको पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन मिल जाएगा। सर 15.4 y एक्सिस पे आएगा क्या? सर 15.4, माय मिस्टेक 0, 15.4 है जल्दबाजी में। सो 15.4 आपका यहाँ पे आएगा समवेयर, राइट? एंड 11 आपका एक्स एक्सिस पे आएगा, तो ये 11.28 है, यहाँ पे 11 आ रहा है। तो यहाँ तो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन फाइंड करना बहुत मुश्किल हो जाएगा। यहाँ पे तो मैं एक्यूरेटली ड्रॉ नहीं कर पाऊंगा। सर ये वाला भी y एक्सिस पे आएगा सर 11.28। क्या सर 11.28 भी y एक्सिस पे आएगा। तो 11.28, अच्छा उधर मैंने गलती कर दी। हाँ, दैट इज माय मिस्टेक, दोनों जगह पे गलती कर दी। यस, थैंक यू वास्तव। तो 11.28 आपका यहाँ पे आएगा। अगर ये 15 है तो समवेयर यहाँ पे आपका ये मान लो दिस इज योर 11.28, और यहाँ आपका y 0 और x है आपका 15.8। दोनों इक्वेशन में मैंने कोऑर्डिनेट अलग अलग ले लिए, गलत ले लिए, x का y और y का x कर दिया। ओके, इज दिस क्लियर एवरीवन? तो यहाँ पे कहीं पे आपको पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन मिलेगा। दिस विल बी योर पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, जहां से आपको x और y की वैल्यू मिल जाएगी। दिस विल बी योर x, दिस विल बी योर y, x, y, जो दोनों आपके 11 से कम मिलेंगे वैल्यू, और वो x, y आप यहाँ पे सब्स्टिट्यूट करोगे तो आपको फाइनल आंसर मिलेगा x + 2y = ब्लैंक। क्या पता चल रहा है स्टूडेंट्स? प्लीज गिव मी सम रिस्पॉन्स। कर सकते हो आप, हाँ या ना? राइट। क्वेश्चन नंबर 3, ये तो आपका 3.1 जैसा ही हो जाएगा, राइट?
चलो अब लेवल 1 के और दो क्वेश्चन है 4 और 5, वो देख लेते हैं पहले। Can you see this question number 4 on screen, everyone? Show graphically that the pair of equations has no solution. ये पेयर को कोई सॉल्यूशन नहीं है, वो आपको ग्राफिकली दिखाना है, राइट? तो ये आप घर से कर सकते हो। कैन आई गिव इट टू यू फ्रॉम होमवर्क? ये घर से आप कर सकते हो, हाँ या ना? राइट, इसके कोई सॉल्यूशन नहीं, वो दिखाना है। फाइंड द वैल्यूज ऑफ a and b फॉर विच द फॉलोइंग सिस्टम ऑफ इक्वेशन हैज इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशन। तो आप इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशन के लिए पहले आप इसे लिख दो 2a minus 1x minus 3y minus 5 equal to 0, 3x plus b minus 2y minus 3 equal to 0. So we know that for infinitely many solutions, a1 by a2 is equal to b1 by b2 is equal to c1 by c2. तो a1 by a2 आपका हो जाएगा 2a minus 1 by 3, b1 by b2 हो जाएगा आपका minus 3 upon b minus 2, यहाँ पे प्लस माइनस साइन का खास ध्यान रखो स्टूडेंट्स। c1 by c2 हो जाएगा minus 5 by minus 3। अब हमें a और b दोनों फाइंड करने हैं स्टूडेंट्स, राइट? यहाँ पे तीनों रेशियोज में से लास्ट वाला रेशियो आपके पूरी न्यूमेरिकल वैल्यू है, तो मैं पहले लास्ट वाले से कंपेयर करता हूँ, फिर सेकंड वन को लास्ट वाले से कंपेयर करता हूँ। सो देयरफॉर 2a minus 1 by 3 is equal to 5 by 3 and minus 3 by b minus 2 is also equal to 5 by 3। यहाँ पे सिंप्लीफाई करूंगा तो 3 times 2a minus 1 is equal to 3 times 5, या दोनों में से आप 3 कैंसिल भी कर सकते हो, राइट? सो 2a minus 1 is equal to 5, 2a is equal to 5 plus 1 6, a is equal to 6 by 2 3। Similarly, यहाँ पे 3 3s are 9 is equal to 5b minus 5 2s are 10। So therefore 5b is equal to minus 10 इधर आ जाएगा plus 10, 10 minus 9 will give you 1, so b will be equal to 1 by 5। a और b आपको दोनों मिल गए। Are you getting my point स्टूडेंट्स? पता चल रहा है ऐसे वाले क्वेश्चंस कैसे सॉल्व करने हैं? बोलो, आसान है, हाँ या ना? राइट, तो 3.2 में आज इतना ही रखते हैं। इसके बाद लेवल 2 के क्वेश्चंस भी हैं, बट नो प्रॉब्लम, लेवल 2 के क्वेश्चन मैं आपको नेक्स्ट क्लास में दिखा दूंगा, राइट? और होमवर्क भी है, होमवर्क में टोटल 8 क्वेश्चंस हैं। एक काम करते हैं, कल मैथ्स की कोई एग्जाम नहीं है ना स्टूडेंट्स, राइट? ओनली फिजिक्स की आपकी एग्जाम है। सो मैं आपको थोड़ा होमवर्क ज्यादा दे रहा हूँ। 3.2 इन क्लास एक्सरसाइज लेवल 2 एंड होमवर्क फुल एक्सरसाइज आप घर से ट्राई करो, हो जाएंगे, बहुत ही इजी क्वेश्चंस हैं, राइट? सब कुछ आपको ट्यूसडे ही दिखाना है, सो प्लीज डू इट।